students. Today we all are gathered here to listen visionary words of Ms. Amanjot Kaur, CEO of AJ Fintech. Someone has rightly said innovation is the key to our entrepreneurship. So Aman is a women entrepreneur and graduated from Punjab University, Chandigarh. She has working experience of more than 11 years. I am sure her motivational words will give you all a zeal to inculcate more entrepreneurial traits. Now I would like to invite HOD ma'am to say a few words. Very good afternoon, Amanjot ma'am and my dear students. Good afternoon, ma'am. Yeah. Yes, student. Good afternoon. Yeah, I thought you are sleeping. Okay, I know it's a lunch time, but they have to arrange some session for you. So we have Ms. Amanjot Kaur. She's experienced in her field, and she is basically here as a expert to motivate you regarding the entrepreneurship and related to the innovation and all that. So she will share you with your all experiences, and we are planning these session for you especially. And most of the students are first year student. So I think this is the first session for you regarding this. All the third sem students already attended these sessions. Yeah, third sem student, you have attended most of the sessions from the industry experts and motivators. But the first year student, this is the first session for you. So that's why we plan. And in the coming days, we have a lots of session on daily basis. So we are inviting our various guests to share with you their experiences so that you can learn so many things with their experiences. Because ultimately you have to go to the field and you have to work there in a corporate. So where you will learn by attending these sessions that how they manage, how they face the various challenges and how they overcome those challenges. So I am definitely sure that you will learn lots of things from this session. So it's a request to all of you to attend very attentively, very positive way, and ask lots of questions. Whatever question you have in your mind, please ask to our expert. And I am sure that our expert is happy to answer your question. Yes, ma'am. Yes, sure. So that's all from my side. So enjoy the session and attend and ask the questions. Thank you. Okay, Aman, we can start. Okay, ma'am. Good afternoon, students and faculty members. First of all, I would like to thank Charu ma'am for rescheduling the session, and thank you so much for giving me this opportunity to share my experience at the platform of Chandigarh Group of Colleges with you all. Before starting the session, I would like to introduce myself. I am Amanjot Kaur, CEO. One second, ma'am. Can I share a screen? And you can share your screen. Yes. Can you see, students? Okay. I'm Amanjot Kaur, CEO of AJ Financial Technical Solution. I was born in 1988 and graduated from Punjab University in BCom Honours in 2008. Post-graduated in MBA Finance in 2010 from Punjab Technical University. And I had total work experience of 11 years. 8 years I worked with national and international companies as an employee. And in 2017 I started my own venture by the name of AJ Fintech. तो आज जो जितने भी लोग हमें जानते हैं वो हमारे AJ Fintech के नाम से जानते हैं. In full it's AJ Financial and Technical Solutions. तो मैं आपको थोड़ा सा आपको अपने फर्म के बारे में बताना चाहूँगी. It's an outsourcing accountancy firm
हम इसमें बिजनेस को हेल्प करते हैं कि वो अपने स्टार्टअप से लेके फाइलिंग ऑफ कंप्लायंसेस तक जो है वो अंडर वन रूफ जो हमसे करवाएं। जो हमारा बेसिक आइडिया था फर्म को स्टार्ट करने का वो था कि हम अकाउंटेंसी को एक आउटसोर्सिंग प्लेटफॉर्म पे लेके आए, बट विद टाइम जो था वो हमें इसमें स्कोप इतना वाइड नहीं नजर आया, तो हमने इसमें एड ऑन किया रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग को। तो विद दिस हम अपने अब जो आज का सिनेरियो है, हम ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, पेटेंट राइट, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स एंड जीएसटी रजिस्ट्रेशंस, कोई स्टार्टअप रजिस्ट्रेशंस हैं, एमएसएमई एंड फूड लाइसेंसिंग, ड्रग लाइसेंसिंग, सब कुछ अपने जो बिजनेस हमारे साथ स्टार्ट करता है हम उसको नॉलेज देते हैं कि उनके बिजनेस के अकॉर्डिंग कि क्या उनको रिक्वायरमेंट है और उस हिसाब से उनका बिजनेस सेटअप करने में हेल्प करते हैं। हम मल्टीपल जो बैंक्स हैं हमारे उनके साथ टाई अप हैं। हम फाइनेंशियल सपोर्ट्स भी देते हैं बिजनेसेस को, बैंक लोन्स दिलाते हैं, उनके जो करंट अकाउंट्स हैं या सेविंग्स अकाउंट है उसमें उनको हेल्प करते हैं उसमें उसको खोलने की। एंड करंटली हम अपना यूट्यूब चैनल भी चला रहे हैं जिसपे हम अब सारी अपने इंफॉर्मेटिव वीडियोस डालते हैं अपने क्लाइंट्स एंड व्यूअर्स के लिए, जिसपे हम इनकम टैक्स की तरफ से या जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी अपडेशन आता है तो हम उसको उनके लिए लेके आते हैं टाइम टू टाइम। तो स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा एंटरप्रेन्योर का। हम इसमें जानेंगे कि हु इज एन एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, हमें क्यों ऑप्ट करना चाहिए एंटरप्रेन्योरशिप को, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहेंगे एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के, टाइप्स क्या हैं, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा वीडियो क्लिप दिखाना चाहूंगी।
जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि एक जो बच्चा है वो अपने स्कूल टाइमिंग से ही अपने ड्रीम को फुलफिल करने के लिए सोचता है, बट लेकिन जो उसके फेलो बीन्स हैं, उसके टीचर्स हैं, सब उसको कोई भी उसे सपोर्ट नहीं दे रहा है उस चीज़ के लिए, बट लेकिन फिर भी वो अपने डेडिकेशन के साथ अपने गोल की तरफ बढ़ता है और एक अपनी कंपनी, अपनी फर्म इस्टेब्लिश करता है, उसे खोलता है और नंबर ऑफ एम्प्लॉइज को वो उसमें जॉब्स देता है। तो जैसे कि स्टीव जॉब्स ने बोला है, वी आर हेयर टू मेक अ डेंट इन द यूनिवर्स, अदरवाइज वाई इवन बी हेयर। सो कमिंग बैक टू द प्रेजेंटेशन, मैं आपके साथ अपने लाइफ के कुछ 10 रूल्स फॉलो करना चाहूँगी, बताना चाहूँगी आपको जो मैंने फॉलो किए हैं अपने करियर में, अपने बिजनेस में। तो लेट्स हैव अ लुक। फर्स्ट रूल इज देयर इज ओनली वन यू बिकॉज देयर वॉज नो वन लाइक यू। आई एम टॉकिंग अबाउट द कोर ऑफ यू, who you are, your beliefs, your values, your flows. And once you understand who you are, you had taken first step in finding your unique self, and that is the best version of you. So students, always find yourself first कि आपको क्या चाहिए, आपको अपनी जो लाइफ है वो कौन सी डायरेक्शन में लेके जाना है, आपको क्या अचीव करना है, आपको बिजनेस में, आपके करियर में, आपकी लाइफ में आपको किस चीज के, किस गोल्स को अचीव करना है। सो द फर्स्ट रूल इज देयर इज ओनली वन यू। विद दिस रूल नंबर 2, लेट योर ड्रीम्स फ्लाई, गिव देम विंग्स स्टूडेंट्स, हु बी you want to be by being fearless. Opportunities, they are being another part of fearlessness. They are very funny things. Here we talking about the opportunities. They won't come easily, students, but when they come we have to recognize them. Our jobs is to recognize them and take them to fulfill our dreams and work so hard. So students, whatever you decide, just go for it. Take the opportunities in your life and work towards it, achieve them. And with this rule number 3, be ambitious. There is nothing wrong to be ambitious, students. And ladies, this is specially for you. There is nothing wrong to be for yourself as long as you are harming or doing something wrong. Don't be afraid to fulfill your dreams, to want more for yourself. So just be ambitious. Whatever work, whatever you do in your business, your career in life, be ambitious towards it. And with this, be greedy. Fourth rule is be greedy or be hungry. Be greedy for the ambitions or be hungry for it. Don't live on someone's benchmarks, students. Fight for your own dreams. You are the only who fight for it, except you. All my path is my own. All my journeys are my own. My struggles, my success, my failures, everything is for us, for me only, students. So just be greedy for your ambition, your passion. With this rule number 5, do not compromise, students. Here I ask you, students, how many of you would like to fail? How many of you would like to fail? I think no one would like to fail. But if it happens at some point, in some situation of life, we all fail. But what matters or what we do after that? So you work hard to achieve, to struggle for your failures to win. Because it is the only way you push a failure ahead and move ahead. Don't ignore it, students. Analyze it and learn from it. Learn from your failures. With this, Steve Jobs said, sometimes life is going to hit you in the head with a brick. Don't lose faith. So students, whatever you do, you fail, but struggle for it. Face the challenges, face the obstacles. Work hard, be dedicated for your goals so that you can achieve your business goals. With this rule number 6, take risks.
As you all know, another name of a business is to take risks. Now, what is life about without a little bit of risk? I always believe you have to take risk, calculated risks, educated risks to evolve the situations which you want to achieve in your life, in your business, in your career. And rule number 7 with this, surround yourself with the right people. Students, let me tell you, no matter what you do, someone will always be unhappy. So, no matter what you do, be surrounded with the right people, with the people who supports you. With this, Bill Gates said, surround yourself with the people who challenge you, teach you, push you to be your best self. And the rule number 8, don't take yourself too seriously. Means appreciate yourself at all the situations. Laugh at yourself. Whether it be a difficult situations, you are in obstacles, you are facing some challenges, be happy. Always appreciate yourself. Always feel kind of proudness in yourself that you achieve something, you are at up to some mark. We are not making rockets, students. Calm down, just enjoy the journey, enjoy the beautiful journey of life, career, business. And with this, rule number 9, give back to the society. Whatever you know, just educate the society, your surroundings, your friends. Educate your surroundings with your knowledge, with your experience, so that they can learn something from you. So always give back to the society, give your knowledge, your experiences to your surroundings, your friends, your seniors. Share with them so that they can give you some advices in return. And the last, not the least, rule number 10, do not forget your roots. Always remember from where you are, from where you started your journey, your career, your business, your failures, your success, your challenges. All you have to be on it so that you can achieve higher and higher goals in life. With this, students, we discuss now our topic, today's topic, who is an entrepreneur. So I would like to share one more clip here.
So students, I hope you liked the video. So the video explains who is an entrepreneur, how they can deal, what are the attitudes, how they deal with their relationships. So let's coming to the topic back. An entrepreneur is someone who creates an idea. It's all about an idea, students. It's the moment when an idea strikes in your mind and you implement it and start a business. You are an entrepreneur. Entrepreneur thinks the word no means to find better ways, because there is meaning of no word in their dictionaries is to find a better way. Entrepreneurs continuously learn, grow and reach their goals in higher and higher. And here I would like to add, अपने बारे में मैं बताना चाहूँगी यहाँ, जब मैंने ये आइडिया को जब मैंने ये सोचा कि मैं ये अकाउंटिंग को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आऊँ आउटसोर्सिंग की, तो बहुत सारी डिफिकल्टी स्टार्टिंग में फेस की, क्योंकि पहले तो मेरा जॉब प्रोफाइल था जिसमें मैं 9 to 6 समटाइम्स 7 एक ही ट्रैक पे काम करते थे. बट लेकिन जब एक बिजनेस में आए तो फ्रॉम वेरी लो टू द हाइज ऑफ बिजनेस सब कुछ आप ही को मैनेज करना है. सारी चीजें जिसको बोलते हैं मैनेजरियल टास्क भी आप ही को देखने हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क भी आप ही को देखने हैं, तो हर छोटी छोटी चीज भी खुद ही मैनेज करनी थी. सबसे पहले तो डिफिकल्टी ही बहुत थी कि मार्केट में इसको लाया कैसे जाए, कौन से क्लाइंट्स हैं जिनको अप्रोच किया जाए, कौन सी मार्केट कैप्चर की जाए. तो डिफिकल्टीज थी जब आइडिया आया. फिर इसको इम्प्लीमेंट भी 2017 में ही किया. 2017 में ही आइडिया था माइंड में, 2017 में ही इम्प्लीमेंट किया इसको. फिर इसके लिए मुझे सबसे पहले हमने मार्केट देखी कि कौन सी कैप्चर करें, तो हमें बेस्ट लगा कि हम जो है मोहाली चंडीगढ़ का इंडस्ट्रियल एरिया जो है उसमें अपने पम्फलेट्स उसमें दे, अपनी मार्केटिंग उसमें करें. देन हमने सोशल मीडिया की साइट ली, उस पर अपने मार्केटिंग की, ब्रांड प्रमोशंस किए. तो विद दिस वी कैन क्रिएटेड अ मार्केट और फिर हमने अपना काम शुरू किया. सो वही है जो मैंने आपको लास्ट लाइन में बताया कि एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो कॉन्टिन्यूसली लर्निंग के प्रोसेस में रहते हैं अपने गोल्स को पाने के लिए. सो देर इज नथिंग इम्पॉसिबल. वैसे भी देर इज नथिंग इम्पॉसिबल इन लाइफ स्टूडेंट्स, because impossible says I am possible. So coming to the another slide, what is entrepreneurship? Once the idea comes, the process is to design them, then launch them and run a new business. जैसे ही आपके माइंड में एक आइडिया आए, आप उसको फॉलो करें कि हमें उसको डिजाइनिंग कैसे करना है, उसको मार्केट में कैसे लेके आना है, and then to run a smooth and a healthy business. Then the capacity and willingness to develop, organize and manage a business venture along with its risks in order to make profits. As I told you in जो मैंने अपने 10 rules में भी आप सबको बताया कि रिस्क, बिजनेस का सेकेंड नेम ही रिस्क है. तो as you take the risk you earn profits. और आज जो है सिनेरियो, आप जितना ज्यादा रिस्क लेते हैं अपने बिजनेस में, आप उतना ज्यादा फ्रूटफुल अपने प्रॉफिट्स को अर्न करते हैं. Coming to next, why entrepreneurship? So unemployment. First point is unemployment. As students आप जानते ही हैं हम इतने टफ टाइम से निकले हैं. लास्ट ईयर में जो हमारा कोविड-19 आ गया था जिस वजह से, एंड उसमें क्या था कि नंबर ऑफ जो एम्प्लॉयमेंट थी, नंबर ऑफ ऑफिसेज जो थे वो शट डाउन हो गए थे. बहुत सारे लोगों ने अपनी एम्प्लॉयमेंट को खोया भी है इसमें. सो अगर हमारा खुद का अगर आइडिया है, हम कोई बिजनेस सोचते हैं कि हम रन करें, हमारा बिजनेस चल रहा है, तो हमें एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी है दैट वी हैव सम एम्प्लॉयमेंट इन आवर हैंड्स. सो एंटरप्रेन्योरशिप क्यों? क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट है तो हम अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के बारे में सोच सकते हैं. कमिंग टू नेक्स्ट, प्रॉफिट मेकिंग. यस ऑफ कोर्स हर जो है हर कोई प्रॉफिट मेकिंग, हर कोई सर्वाइवल के लिए पैसे के लिए ही बैठा है, मनी मेकिंग ही है. तो प्रॉफिट मेकिंग तो दैट इज अ पार्ट ऑफ अ बिजनेस फॉर इवन फॉर द एम्प्लॉयमेंट. इफ वी आर वर्किंग समवेयर वी वर्क फॉर अवर सर्वाइवल्स. सो प्रॉफिट मेकिंग
Then second, the need to learn more. Yes, this is very important, students, because in entrepreneurship, in your own business, you keep on learning. जो 9 to 5 का जॉब या 5 to 6 का जॉब का जो रहता है उसमें है कि हमें एक टास्क दे दिया, हमें उसी पे वर्कआउट करना है. बट इन आवर ओन बिजनेस हमें नई नई चीजें सीखनी है, बिकॉज वी हैव टू इम्प्लीमेंट इट इनटू द बिजनेस. तो लर्निंग प्रोसेस जो है वो लॉन्ग रहता है, इन लॉन्ग रन रहता है. देन कमिंग टू characteristics of a successful entrepreneur. As first, that is commitment. So हमें committed रहना है अपने goals की तरफ. जो business goals हमें achieve करने हैं, so it's very important कि हम dedication के साथ उनको achieve करें. जो भी challenges आते हैं हम उनको face करें, because challenge and obstacles तो आएंगे ही जब हम अपना कोई वेंचर, अपनी कोई भी चाहे हम अपनी स्टडीज कर रहे हैं तब भी हमें चैलेंजेस तब भी फेस करने पड़ते हैं. इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ. सो कमिटेड रहें अपने गोल्स को लेके. देन रिस्क टेकर. एज आई टोल्ड कि बिजनेस का सेकेंड नेम रिस्क है, तो रिस्क आप जितना ज्यादा लेंगे, जितने ज्यादा नई चीजें अपने बिजनेस में लेके आएंगे, उतना ही आपको प्रॉफिट मेकिंग रहेगा, आपका बिजनेस अच्छा ग्रो करेगा. देन कमिंग टू सेल्फ बिलीफ, हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन, डेडिकेशन. आपको अपने ऊपर फेथ होना चाहिए, आप हार्ड वर्क से अपने सारे काम करें, डेडिकेटेड रहें अपने काम को लेके, एक डिसिप्लिन फॉलो करें लाइफ में कि आपको हर काम अपना टाइम से करना है, टाइम से आपको ऑफिस आना है. अगर आपका कोई डेडलाइंस है तो आपको उसको डेडलाइन से पहले ही उसको अचीव करना है. देन रिसोर्सफुलनेस की बात करें तो बहुत सारे रिसोर्सेज हैं एक एंटरप्रेन्योर के पास. अगर आपने कुछ इम्प्लीमेंट अपने बिजनेस में नहीं किया, अपनी बिजनेस में कुछ इम्प्लीमेंट किया और वो अकॉर्डिंग टू योर एक्सपेक्टेशंस आप उसको रन नहीं कर पाए, तो यू हैव लॉट्स ऑफ रिसोर्सेज. आप नई नई चीजें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. देन कमिंग टू एडॉप्टेबल एंड फ्लेक्सिबल. तो आप अपने बिजनेस में फ्लेक्सिबल रहते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है आपको कि आपको 9 बजे या 10 बजे ऑफिस जाना ही है. सो इट्स ऑल अप टू योर वर्क शेड्यूल कि आप उसको कैसे अपने बिजनेस को मैनेज, अपने काम को कैसे मैनेज करते हैं. देन नॉलेज ऑफ प्रोडक्ट एंड मार्केट. बहुत जरूरी है कि आपके पास आपके प्रोडक्ट की नॉलेज हो, आपकी मार्केट की नॉलेज हो. एज आई टोल्ड कि मार्केट बनाने में जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो इट टेक्स अ ह्यूज टाइम टू क्रिएट अ मार्केट. धीरे धीरे आपको लोग जानने लगेंगे, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको अपनी मार्केट की, आपकी प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए. देन मनी मैनेजमेंट स्किल्स होनी चाहिए आपके पास. आप अपनी मनी को इस तरह से मैनेज करें कि सपोज आपको प्रॉफिट है, इस साल आपको प्रॉफिट हुआ है, आपने कुछ पार्ट प्रॉफिट का उसमें से अपनी सेविंग्स में रख लिया, सो दैट इन द टाइम्स ऑफ लॉस आप उस प्रॉफिट को, उस पैसे को दोबारा से रीयूज कर सके. इस हिसाब से आप अपनी मनी मैनेजमेंट स्किल्स भी इंप्रूव करते हैं. एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स. आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो एक्सीलेंट होनी चाहिए. मीन्स कि आपकी लिसनिंग पावर अच्छी होनी चाहिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर अच्छी होनी चाहिए, ताकि आप अपने क्लाइंट्स को समझ सके. आप वो क्या चाहते हैं आपसे, उनको कौन से प्रोडक्ट्स चाहिए या कौन सी सर्विसेज चाहिए, आप उनको अंडरस्टैंड कर सकें. इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो एक अच्छे लेवल की होनी चाहिए. और ये एक एंटरप्रेन्योर की करेक्टरिस्टिक्स में है कि जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं उनके पास ये सारी कम्युनिकेशन, मनी मैनेजमेंट, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन, देन उनको नॉलेज होनी चाहिए प्रोडक्ट की, मार्केट की, रिसोर्सेज हैं उनके पास, उनको एक डेडिकेट होके अपने काम की तरफ बढ़ना चाहिए एंड कमिटेड रहना चाहिए उनको अपनी गोल्स की तरफ. देन टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. एंटरप्रेन्योरशिप किस तरह की हो सकती हैं? अब स्मॉल बिजनेसेस भी हो सकते हैं जिसमें पॉप शॉप्स, लोकल बिजनेसेस. आजकल तो हमारे पास इंटरनेट का वाइड प्लेटफॉर्म है जिस वजह से हम ऑनलाइन बिजनेसेस चला सकते हैं. इंटरनेट बेस्ड बिजनेसेस जो स्मॉल भी हो सकते हैं, होम बेस्ड भी हो सकते हैं, लार्ज स्केल पे भी जो है ऑनलाइन बिजनेसेस चल रहे हैं, जैसे फ्लिपकार्ट्स है, अमेजोन है, उसके बाद आपका नायका है, दैट्स अ वेरी फेमस. एज आई होप सारे जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं, दे नो इट. देन होम मेड बिजनेसेस, होम बेस्ड बिजनेसेस जो हैं वो हम एंटरप्रेन्योरशिप में
कर सकते हैं. देन कमिंग टू एडवांटेजेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, तो फ्रीडम है हमारे पास अपने विजन को परस्यू करने की. हम जो सोचते हैं, जो चाहते हैं, हम वो अपने खुद के बिजनेस में उसको अचीव कर सकते हैं. बात करें अर्निंग्स की, तो अगर हम पूरी डेडिकेशन से, पूरे हार्डवर्क से काम करते हैं तो हम एक सैलरीड एम्प्लॉय से ज़्यादा अर्न कर सकते हैं. देन कंट्रोल एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आवर ओन टाइम, हमारे टाइम को हम खुद मैनेज कर सकते हैं. अगर आपको किसी दिन ज़्यादा काम करना है तो आप उस तरह से अपना वर्क शेड्यूल मैनेज कर सकते हैं. अगर किसी दिन कम काम है तो आप अपनी फैमिली को टाइम दे सकते हैं. देन द अपॉर्चुनिटी टू लर्न एंड गेन नॉलेज, ये तो ऑलवेज ही रहता है. जब आप अपने बिजनेस में हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा गेन करते हैं नॉलेज, ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करते हैं ताकि आप नई चीज़ें आप अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर सकें. देन द चांस टू शेयर योर लर्निंग, द सेम जो मैंने आपको अपने रूल्स में बताया कि गिव बैक टू द सोसाइटी. आप जितना ज़्यादा दूसरों को नॉलेज देंगे, आपने एक्सपीरियंसेस उनके साथ शेयर करेंगे, देन दैट वुड बी बेटर. आप अपनी लर्निंग को शेयर कर रहे हैं. अगर आप किसी को कुछ बताएंगे तो इन रिटर्न वो भी आपको अपने एक्सपीरियंसेस बताएगा, सो यू ऑल्सो लर्न फ्रॉम देम. देन सेंस ऑफ प्राइड, अगर आपने कोई अपना बिजनेस, अपना वेंचर स्टार्ट किया है तो यू फील प्राउड फॉर योर सेल्फ. Your parents feel proud with it, your teachers, your friends feel proud. Then sense of pride is involved. Then coming to disadvantages, yes students, अगर हमारे कुछ advantages हैं तो disadvantages भी रहते हैं. तो वर्क शेड्यूल जो है समटाइम्स इट गेट वेरी स्टक. आप बहुत ज़्यादा काम में इतना ज़्यादा हो जाते हैं कि आपको अपनी पर्सनल लाइफ के लिए टाइम नहीं मिलता बिकॉज ऑफ योर वर्क शेड्यूल्स. देन नो रेगुलर सैलरी, बिल्कुल कोई रेगुलर सैलरी नहीं है बिजनेस में. समटाइम्स यू हैव टू बी इन वेरी मच ऑफ प्रॉफिट्स एंड समटाइम्स इन लॉस ऑल्सो. देन एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, जो छोटे छोटे ऑफिस के काम हैं वो भी आपको ही देखने पड़ते हैं. देन कॉम्पिटिशन, येस द मार्केट इज फुल ऑफ एंटरप्रेन्योर्स इन दीज टाइम्स, सो कॉम्पिटिशन भी बहुत ज़्यादा है मार्केट में. देन एज आई टोल्ड कि पर्सनल लाइफ कहीं ना कहीं जो है वो इफेक्ट करती है, बट वी ऑल मैनेज अकॉर्डिंग टू आवर टाइम शेड्यूल्स, आवर वर्क. सो आई होप this is clear from my part. I would like to share one more video with you all. Yes, this is.
do you like it, students, this video? Aman, could we have your last slide, which you have your address mentioned? Yes, ma'am, yes. So students, they are offering internship opportunities also. So you can take the address and LinkedIn profile and contact number also. You can take the pic of the slide. Can you see? Yes, yes. Okay, ma'am. You can note down the address, please. Okay, any questions from anyone? सो स्टूडेंट्स, जो आज का सेशन है हम अपने यूट्यूब चैनल पे भी डालेंगे. सो डू विजिट देयर, सब्सक्राइब माई चैनल and you get more informative videos also over there. Yes, any questions from anyone? Yes, please. Stop कर दो sir. Aman, we have one question from जी मैम, जी बिल्कुल जी. Am I audible, ma'am? हेलो. Am I audible to you? हाँ जी. Ma'am, despite of being successful in your 96 job, what motivated you to become an entrepreneur? Can you repeat it? Actually, it's not clear. Is it clear, ma'am, now? जी बोलिए. Ma'am, despite of having such a good 9 to 6 job, Okay. what was the biggest motivation factor which actually helped you to become an entrepreneur? Motivational factor. I thank to my brother who just suggested me that just start your own venture. Because in job I feel कि मुझे मेरा एक ही टास्क था, बस सुबह मुझे जाना है और उनकी जो बैंकिंग है उसको देखना है, फिर उसके बाद उनकी जो बिलिंग है वो देखनी है, या 2-3 कस्टमर्स के साथ डीलिंग करनी है, उनके लेजर्स देखने हैं. सो एट सम स्टेज आई फील क्वाइट बोरिंग कि 8 साल से मैं वही काम कर रही हूँ, मुझे कुछ लर्निंग के लिए नहीं मिल रहा है. तो व्हेन आई स्टार्टेड इट, तो मैंने बहुत सारे अपने में मेरी बहुत सारी इम्प्रूवमेंट्स आई हैं. मैंने बहुत सारी रजिस्ट्रेशन, लाइसेंसिंग, जिसको मैं अपनी जॉब में नहीं मैंने कभी ध्यान दिया कि इतना कुछ नॉलेजेबल है इन फील्ड ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस. तो मुझे उसकी नॉलेज हुई, मैंने बहुत सारी चीज़ों को जाना, गवर्नमेंट की बहुत सारी जिसको बोलते हैं प्रोसेसेस को जाना कि गवर्नमेंट वर्क कैसे करती है इन द फील्ड ऑफ अकाउंट्स. तो बहुत मेरे लिए जो जिसे बोलते हैं कि अच्छा प्लेटफॉर्म रहा है कि जब मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, जॉब में मैं वो एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाई. Think women face much challenge in entrepreneurship than men? जी बिल्कुल, क्योंकि मैं आपको कल का सिनेरियो ही बताती हूँ जिस वजह से हमने रीशेड्यूल किया इसको. अगर ये चीज एक पर्सन के मतलब एक मैन के लिए होता, मैं आपको कल का बता देती हूँ सिचुएशन. मेरे जो इन लॉज हैं उसमें विद सम मिसहैपनिंग जो है, हमारे एक अंकल की डेथ हो गई जिस वजह से हमें रीशेड्यूल करना पड़ा इस सेशन को. बट मुझे लगता है कहीं अगर ये जो है एक मैन के लिए होता, घर के किसी लड़के के लिए होता, तो शायद उसको ये रीशेड्यूल करना ही नहीं पड़ता, वो कल ही इसे देता. बट लेकिन बीइंग डॉटर इन लॉ, तो मुझे शायद इसको शिफ्ट करना पड़ा कल की बजाय आज में. सो इट्स बीइंग वेरी चैलेंजिंग फॉर अ लेडी कि उसको हर चीज को मैनेज करना है, अपने इन लॉज को भी मैनेज करना है, अपने बिजनेस को भी मैनेज करना है.
बट थैंक्स टू माई हस्बैंड जो मुझे सपोर्ट करते हैं मेरी हर डिफिकल्टीज में, तो मैं आज आपके सामने हूँ उसी वजह से. थैंक यू. Thank you, ma'am. Thank you so much, Aman, for sharing your valuable. I'm looking forward to see you in campus also. यो श्योर मैम श्योर. प्लीज लेट मी नो जब भी अगर कोई सेशन मुझे देना हो तो मैं ऑफलाइन भी दे दूंगी मैम. नो इश्यूज. Thank you so much. जी मैम. Okay, bye students. Have a great day ahead. Bye bye.